Then I can see him back there when he killed these sheep. He said, "Was the sheep, Brother Branham?" तब मैं उसे पीछे देख सकता हूँ, तब उसने इस भेड़ को मारा। आप कहते हैं भाई ब्रैनम, क्या वे भेड़ थे? I believe it. He was the lamb that was slain from the foundation of the world. मैं इसका विश्वास करता हूँ, वह मेमना था जो पृथ्वी के रचने से पहले मारा गया। And it was a sheepskin taken, thrown back in the bushes, and told them to wrap up in these and come out and receive. और वे भेड़ की खाल थी, लेकर उन्हें झाड़ियों के पीछे फेंक दिया और उन्हें बताया, इसमें लिपट जाओ, इसे लेने के लिए बाहर आओ। And I can see Adam and Eve pull these old bloody, flappy skins around them. Could you imagine the lovely, beautiful bodies of those two perfect human beings? और मैं देख सकता हूँ आदम और हवा इन लहू लुहान फड़कती हुई खालों को अपने चारों ओर लपेटते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक प्रिय सुंदर देह उन दो सिद्ध मनुष्य जाति की अब लहू लुहान भेड़ की खाल में लिपटी हुई है। Now, wrapped in bloody sheepskin. I can see him stand out there. God said, "Adam, because you listened to your wife instead of me, then I took you out of the dust, and dust you'll return." मैं उन्हें वहां खड़ा हुआ देख सकता हूं। परमेश्वर ने कहा, आदम, क्योंकि तूने मेरे बजाय अपनी पत्नी की सुनी, मैंने तुझे भूमि की मिट्टी से निकाला था और तू मिट्टी में मिल जाएगा। Right there they was. Judgment. God had to keep his judgment. Amen. और तभी वह वहां थे, न्याय, परमेश्वर को अपना न्याय बनाए रखना था, क्योंकि उसने ये कहा था, Spoken and he's God, he can't back up on it, he's got to say. And in order to be God, God has to keep his word. Amen. That's right. और वह परमेश्वर था, वह इससे वापस नहीं फिर सकता था, उसे इस पर स्थिर रहना था। परमेश्वर बना रहने के लिए परमेश्वर को अपने वचन पर स्थिर रहना था। ये ठीक बात है। So there, I can imagine seeing that poor little Eve when she looked at Adam, her long blonde hair hanging down her back. इसलिए वहां मैं हवा की कल्पना कर सकता हूँ। वे बेचारी हवा जब उसने आदम की ओर देखा, उसके सुनहरे लंबे बाल उसकी पीठ पर लटक रहे थे। Those big, bright blue eyes that look like the skies where God has made them. The tears pouring down, mixing with the blood on the garments and flapping down around her body. वे बड़ी चमकदार नीली आंखों से आकाश की सी दिखी, जिन्हें परमेश्वर ने बनाया था। आंसू बह रहे थे, वस्त्रों के लहू में मिल रहे थे और उसके शरीर के चारों ओर फड़क रही थी। Adam with his strong body caught her and leaned her over on his bosom, and there the tears mingling, falling as it runs through the sheepskin, blood dripping down, blood all the way. There. हवा आदम ने अपने मजबूत शरीर से उसे पकड़ा और उसे अपने सीने की ओर झुका लिया और वहां आंसू मिलकर गिर रहे थे, जैसे वे भेड़ की खाल से होते हुए बह रहे थे। लहू नीचे टपक रहा था, चारों ओर लहू ही लहू वहां। Now he says you have to depart out of my presence, and I see. अब वह कहता है, तुम्हें मेरी उपस्थिति से चले जाना होगा। I see Eve and Adam with their arms around one another, going, moving out like this. Them old sheepskins flopping against their legs, bloody, beating on their legs. और मैं आदम और हवा को देख सकता हूँ कि अपने हाथ एक दूसरे में डाले इस प्रकार से बाहर जा रहे हैं। वे भेड़ की खाल उनके पैरों में लटक रही है, लहू लुहान उनके पैरों में लटक रही है। Then I can see all that space, which was God. God has no beginning of days, ending of years. He is forever and forever. तब मैं सारे अंतरिक्ष को देख सकता हूँ जो परमेश्वर था। परमेश्वर के कोई दिन आरंभ नहीं होते, वर्ष समाप्त नहीं होते, वे सदा से सदा है। I can see all that great space begin to move together like this, coming down to a funnel shape like that. मैं देख सकता हूँ कि सारा महान अंतरिक्ष इस प्रकार सिमटने लगा, इस प्रकार कीप के आकार में आ गया। And it moved right down as he began to eye that little couple going down through the Garden of Eden. और ये सीधा नीचे आया
जैसे ही उसने उस जोड़े को अदन की वाटिका में से जाते देखा, bloody, skins flopping against her legs. He couldn't stand it, and it moved down. All it moved is down to the very heart of God, spelled L-O-V-E. God so loved. लहू लुहान खाले उनके पैरों में टकरा रही थी। वे इस प्रकार खड़ा नहीं रह सकता था और ये भीतर उतर गया और इसके ठीक परमेश्वर के हृदय में उतर गया। अक्षर विन्यास L-O-V-E, प्रेम। परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, वो उन्हें जाते हुए ना देख सका। He just couldn't see him go. He called him back and said, I'm going to put enmity between your seed and Satan's seed. Then, when that was done, was at Calvary, when God Himself came down to a woman born of a virgin. उसने उन्हें पुकार कर कहा, मैं तुम्हारे और शैतान के वंश के मध्य में बैर उत्पन्न करूंगा। तब जब ये कलवरी पर होगा, जब परमेश्वर स्वयं स्त्री के द्वारा नीचे आया, कुंवारी से जन्मा। I would like to deal there just a little bit in Eden. Notice when they were driven from the garden because of transgression. All the blessings cut off because of transgression. मैं वहां कैसा व्यवहार करना चाहूंगा, थोड़ा सा अदन में ध्यान दें। जब वाटिका से अपराध के कारण बाहर निकाले गए थे, सारी आशीष हटा दी गई अपराध के कारण। Driven from the Garden of Eden, I want you to notice, here comes when Cain and Abel, the two sons of Adam and Eve, came forward to make an offering. वे अदन वाटिका में से निकाल दिए गए। अब मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें, यहाँ यह आता है जब कैन और हाबिल, आदम और हवा के दो पुत्र, भेंट चढ़ाने के लिए आगे आते हैं। I believe the great cherubim was at the east side of the gate, and that sword whirling back and forth, guarding that gate there, and it entered into Eden. Notice, fire, the Holy Spirit, fire, guard the gate. मैं विश्वास करता हूं कि महान सर्राफ द्वार के पूर्व की ओर था और वह तलवार आगे पीछे घूम रही थी, उस द्वार की जो अदन में घुसने के मार्ग की रक्षा कर रही थी। ध्यान दें, आग, पवित्र आत्मा की आग द्वार की रक्षा कर रही थी। And today that's what guards the gate. Amen. If you're scared of Holy Ghost and fire, you'll never get in. और आज वही द्वार की रक्षा करती है। यदि आप पवित्र आत्मा और आग से डरते हैं, तो आप कभी भी अंदर नहीं जा सकते। The sword of God. God is a consuming fire. Watching that tree, guarding that tree of life. अग्नि में परमेश्वर की तलवार, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, उस वृक्ष की रक्षा कर रही है, उस जीवन के वृक्ष की रक्षा कर रही है। And I notice that this is a beautiful picture. Oh my! I can see Adam or Cain and Abel rather toiling now or going out to make a sacrifice. और अब ध्यान दें, अब ये एक सुंदर चित्र है। ओ प्रभु, मैं आदम को देख सकता हूँ, या कैन को, बल्कि हाबिल को अब परिश्रम कर रहा है, यह एक बलिदान तैयार कर रहा है। I believe they built their altar right at the gate, at the throne, where they could worship. मैं विश्वास करता हूँ, उन्होंने अपने द्वारा अपनी वेदी बनाई सिंहासन पर, जहाँ वे आराधना कर सकें। Notice, here comes Cain. He probably worked all the year, toiling, doing everything he could to get the very biggest apples or the very biggest pumpkins or whatever he had, brought it up to the gate. ध्यान दें, यहाँ कैन आता है। संभवतः है उसने पूरे वर्ष परिश्रम किया, सब कुछ किया, ताकि वे सबसे बड़ा सेब पा सके, या उससे बड़ा कहूँ, या उसके पास जो कुछ भी था उस द्वार पर लेकर आया। Built him an altar right there by the side of the gate in the presence of God. Put all his fruits and the big cow lilies and everything and laid them on the altar correctly. Then knelt down and worshiped God. अपने लिए वहां द्वार के पास वेदी बनाई, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने सारे फल रखे और बड़ी कुंदमनी और हर चीज और वेदी पर वहां उसे सही प्रकार से रखा और तब घुटने टेक कर और परमेश्वर को दंडवत किया। Cain did that himself. Amen. See? He brought a sacrifice.
He worshiped the Lord. He knelt down and offered praise unto the Lord and said, Lord, here am I, and I brought you an offering. I built an altar. Amen. कैन ने ये स्वयं किया, समझे? वह एक बलिदान लाया, उसने प्रभु की आराधना की, उसने घुटने टेक कर और प्रभु को महिमा की भेंट चढ़ाई और कहा, प्रभु मैं यहाँ हूँ और मैं तेरे लिए एक भेंट लाया हूँ, मैंने एक वेदी बनाई है। आमीन। Notice now when Abel comes to make his offering, well, it was quite a difference when Abel comes. अब ध्यान दें, जब हाबिल अपनी भेंट चढ़ाने आया, देखिए जब हाबिल आया तो ये बहुत ही भिन्न था। यह हाबिल आता है, Here comes Abel. He didn't work. He didn't try to find the biggest church in town to go to. He didn't try to find the nicest bunch of people to associate with. Amen. He just took something that he had and come on. उसने कार्य नहीं किया, उसने नगर का सबसे बड़ा आराधनालय खोजने का यत्न नहीं किया कि वे वहां जाए तो उनसे संबंध बनाने के लिए अच्छे लोग नहीं ढूंढे। आमीन। उसने केवल वही किया जो उसके पास था और वो आ गया। That's all. He was a sheep herder. So he just reached over and got a lamb and tied it. I suppose they didn't have any hemp in that day, so he must have got a grapevine, just wrapped it around his neck. बस यही है कि वे एक चरवाहा था, इसलिए उसने जाकर एक मेमना लिया और उसे बांधा। मैं समझता हूँ कि उन दिनों में उनके पास कोई रस्सी ना थी, इसलिए उसने अंगूर की बेल ली और उसकी गर्दन के चारों लपेटी। But what did it speak of? They led him to Calvary. He was the lamb. But why was he born in a barn? Well, lambs are not born in houses, they're born in barns. परंतु ये किसको दर्शाता है? वे उसे कलवरी पे ले गए, वे मेमना था। कहा कि वे क्यों चरनी में जन्मा? देखिए, मेमने घरों में जन्म नहीं लेते, वे भूसे की खलियानों में जन्मते हैं। And they led to the slaughter like a lamb. And they led him away, leading him up Calvary. और वे मेमने के समान कसाई घर ले जाए जाते हैं और वे उसे दूर ले गए, कलवरी पे ले गए। He was God's lamb. From the foundation of the world. When I think of it there comes Abel's little lamb. There comes God's lamb. वे परमेश्वर का मेमना था। आमीन। इस सृष्टि के रचने से पहले जब मैं इस विषय में सोचता हूँ कि हाबिल का छोटा मेमना वहाँ आता है, यहाँ परमेश्वर का मेमना आता है। I can see little Abel. Watch now. I can see Abel go and get this little grapevine, reach out and get a little male lamb, first from the old mother ewe. मैं छोटे हाबिल को देख सकता हूँ। अब ध्यान दें, ओ मेरे परमेश्वर, मैं देख सकता हूँ कि हाबिल जाता है और एक अंगूर की बेल लाता है और जाकर एक नर मेमना, उसकी माँ का पलौठा। Wrap this vine around his neck. Here he comes dragging him. Not much beauty to that, is there? Pulling him up there. Then he got him up to a big rock, laying there at the east end of the gate. इस बेल को उसके गले में बांधता है और उसे घसीटता हुआ ला रहा है। इसमें कोई सुंदरता नहीं। क्या है? वे उसे खींच कर ला रहा है। तब वे उसे एक बड़ी चट्टान पर ले गया और उसे पूर्व के फाटक की ओर लिटा दिया। Now notice, Cain had probably toiled all year to make the best of crop that he could. Thought he could please God by अब that. ध्यान दें, संभवतः कैन ने पूरे वर्ष परिश्रम किया ताकि अच्छी फसल उगाए जो वह कर सकता था। सोचा कि वह इससे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। Here come the little fellow blading along, and when he got him up to the great rock, laid him up on the rock, taking a piece of sharp rock. I don't know, yes, they had no knives in those days. अब यहाँ वह छोटा सा चिल्लाता हुआ आ रहा है और जब वह उसे चट्टान पर ले गया, उसे चट्टान पर रख दिया और धार वाले पत्थर को लिया। मैं नहीं जानता, अनुमान है कि उन दिनों में उनके पास चाकू नहीं होंगे। Laid him like that, took him by the back of his head and pulled him up like this, took a knife, the rock and began to chop his little throat. And the rock began to beat through his throat. इस प्रकार से लिटा दिया, उसके सर को पीछे की ओर लिया और इस प्रकार से खींचा, चाकू लिया यानी पत्थर और उसके छोटे से गले को काटना आरंभ किया और पत्थर उसकी गर्दन से होकर पार होने लगा। On that rock died the
where his little white wool becomes bathed red there with blood. उस चट्टान पर मेमना मर गया, लहू बह रहा था, फड़फड़ा रहा था, लहू बिखर रहा था, उसकी धमनियां कटी हुई हैं, चारों ओर लहू ही लहू, उसका सफेद ऊन लहू से लथपथ होकर लाल हो गया। God looked down from the heaven and said, "That's it. Now you've got it. That's the way. The blood spurting from his little veins." परमेश्वर ने स्वर्ग से देखकर कहा, यही है, अब आप समझे, यही विधि है। लहू उसकी धमनियों से तेजी से निकल रहा था। What was it? Of the Son of God, 1900 and something years ago, this afternoon, he was led from prison, he was taken to the judgment seat, and from there to the hall of scourges. ये क्या था? परमेश्वर का पुत्र 1900 वर्ष पहले यही चीज इस दोपहर वे कैद में ले जाया गया, वे न्याय के सिंहासन के सामने ले जाया गया, वे वहां से उपवास उड़ाने के स्थान पर ले जाया गया, वहां से गुलगुता तक पहाड़ पर खींच कर ले जाया गया।